সোমবার 1 জুলাই থেকে সারা দেশের সাথে রাজ্যেও 3টি নতুন ফৌজদারি আইন চালু হয়েছে। এই ব্যাপারে সাংবাদিক বৈঠকে বিশদে জানালেন পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা শাসক ডক্টর বিশাল কুমার এবং পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা সুপার কিরণ কুমারকে। সোমবার 1 জুলাই থেকে সারা দেশের সাথে রাজ্যেও 3টি নতুন আইন চালু হয়েছে। নতুন 3টি আইনের বিভিন্ন ধারা সম্পর্কে জনগণ ও আইনের সাথে যুক্ত সংশ্লিষ্ট সকলকে অবগত করার জন্য সচেতনতামূলক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হচ্ছে। রাজ্যের নতুন এই ফৌজদারি আইনগুলি কার্যকর করার জন্য ইতিমধ্যে 4000-এর উপর সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রের ব্যক্তিদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। সোমবার পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার জেলা শাসকের কার্যালয়ে কনফারেন্স হলে এক সাংবাদিক সম্মেলনে জেলা শাসক ও সমাহর্তা ডক্টর বিশাল কুমার এই কথা জানান। জেলা শাসক ও পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার পুলিশ সুপার ডক্টর কিরণ কুমারকে একদিনের যৌথ সাংবাদিক সম্মেলনে আজ থেকে দেশে চালু হওয়া নতুন 3টি আইনের বিভিন্ন দিক তুলে ধরেন। উল্লেখ্য, নতুন এই 3টি আইন হলো ভারতীয় ন্যায় সংহিতা 2023, ভারতীয় নাগরিক সুরক্ষা সংহিতা 2023, ভারতীয় সাক্ষ্য অধিনিয়ম 2023। সাংবাদিক সম্মেলনে জেলা শাসক ও পুলিশ সুপার জানান, পুরাতন আইনগুলো বেশিরভাগই ছিল 120 থেকে 160 বছরের পুরাতন। বিচার প্রক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করতে এই নতুন 3টি আইন প্রণয়ন করা হয়েছে। বিচার ব্যবস্থা আধুনিকীকরণ, বিচার প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত করা, সুরক্ষা নিশ্চিত করতে প্রায় 4 বছরের ধরে বিভিন্ন আলাপ আলোচনার শেষে এই আইনগুলি আনা হয়েছে, যাতে করে দ্রুত মামলা নিষ্পত্তির পাশাপাশি নাগরিকদের সুষ্ঠু বিচার মধ্য দিয়ে সঠিক ন্যায় প্রদান করা যায়। তাছাড়া এই আইনের মাধ্যমে অপরাধের ক্ষেত্রে সাজার হারও বাড়ানো যাবে। এই 3টি ফৌজদারি আইনের কয়েকটি দিক হলো, নতুন আইন অনুসারে ঘটনা সেখানেই সংঘটিত হোক না কেন যে কোনো জায়গায় এফআইআর করা যাবে, পাশাপাশি এই এফআইআর এর করা যাবে। এই আইনের বৈদ্যুতিন পদ্ধতিতে সমস্ত বিচার প্রক্রিয়া তদন্ত প্রযোজ্য হবে। এছাড়া নতুন আইন অনুসারে বৈদ্যুতিন পদ্ধতিতে মৌখিক সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হবে। লিখিত সরাসরি সাক্ষ্য দেওয়ার মতো এই বৈদ্যুতিন সাক্ষ্যেরও সমান গুরুত্ব থাকবে। এতে দূর থেকেও সাক্ষীরা সাক্ষ্য দিতে পারবেন। সাংবাদিক সম্মেলনে আরো জানানো হয়েছে, ভারতীয় ন্যায় সংহিতা 2023, ভারতীয় দণ্ডবিধি 160-কে প্রতিস্থাপন করে ভারতীয় নাগরিক সুরক্ষা সংহিতা 2023, ফৌজদারি কার্যবিধি 1973-কে প্রতিস্থাপন করে এবং ভারতীয় সাক্ষ্য অধিনিয়ম 2023, ভারতীয় সাক্ষ্য আইন 1872-কে প্রতিস্থাপন করা। আগামী দিনে এই নতুন আইনের মাধ্যমে পুলিশ অপরাধীদের ক্ষেত্রেও বিশেষ ভূমিকা নিতে পারবেন বলে জানিয়েছেন পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা শাসক ডক্টর বিশাল कुमार। जुडिशियल प्रोसीजर भी फास्ट हो, इसके लिए कुछ प्रोविजन जैसे 0 FIR का प्रोविजन है या EFIR का प्रोविजन है। साथ साथ जो अवधि चार्जशीट की है उसको भी लिमिट कर दिया गया है। इतने दिनों में आपको चार्जशीट जमा ही करानी है। फिर अगर कोई नागरिक कंप्लेंट डालता है पुलिस स्टेशन में तो उसका फीडबैक भी उसको 90 दिन के अंदर और उसके बाद 15 दिन के अंदर देना है। तो इससे हमारी जो जुडिशरी है या जो हमारा पुलिस तंत्र है, इसकी अकाउंटेबिलिटी भी, टाइम बाउंड अकाउंटेबिलिटी भी फिक्स करने की कोशिश की गई है। और जो भी जजमेंट है उसको ऑनलाइन अपलोड करने का इसमें कंपलसरी एज पर एक्ट प्रोविजन दिया गया है कि 7 दिन के अंदर आपको करना पड़ेगा। इसके साथ साथ गवर्नमेंट के भी कर्मचारी अगर किसी ऑफेंस में इन्वॉल्व होते हैं तो उनमें भी बोला गया है कि 120 दिन के अंदर सरकार को परमिशन देनी पड़ेगी अथवा वो डीम्ड परमिशन माना जाएगा और कार्रवाई उपयुक्त की जाएगी। साथ ही साथ जो हमारे फ्यूजिटिव ऑफेंडर्स हैं, उन फ्यूजिटिव ऑफेंडर्स जो देश छोड़ के या जिनका पता नहीं लगता, उनके खिलाफ भी कार्रवाई कंटिन्यू रहेगी और जजमेंट भी सुनाया जा सकता है। और कुछ ऑफेंसेस जो हैं जैसे वुमेन बेस्ड और चिल्ड्रन बेस्ड ऑफेंसेस, जिनको पुरानी जो सिस्टम था उसमें उतनी महत्वता नहीं दी गई थी, इसमें उन पे और कड़ी कार्रवाई और टाइम बाउंड डिसीजन मेकिंग का भी प्रोविजन किया गया है। कुछ ग्रे जोन थे, जैसे पार्डन का सिस्टम था, जो कभी कभी पॉलिटिकल गेन्स की वजह से पार्डन का सिस्टम बहुत लचीला था। उसमें एश्योर किया गया है कि किसी भी पार्डन को इस तरीके से दिया जाए ताकि लोगों को एकदम ही छूट ना मिले। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप लाइफ इम्प्रिजनमेंट के लिए पार्डन मांग रहे हैं तो वो लाइफ इम्प्रिजनमेंट को पार्डन करके मिनिमम 7 इयर्स का प्रिजन दिया जा सकता है।
इसी तरीके से डेथ पेनल्टी का पार्डन लाइफ इम्प्रिजनमेंट से कम नहीं हो सकता है। और कुछ एनार्किक लॉ थे, जैसे सेडिशन लॉ था, अथवा जैसे 370 का जो अननेचुरल सेक्स का जो प्रोविजन था, जो आज हमारे समाज में इस तरह से ब्रॉड माइंडेड होने की वजह से एक्सेप्टेंस नहीं है, उन सभी को हटा दिया गया है। तो अमूमन बहुत स्तर पे इस पे काम किया गया है, बहुत ब्रॉड ये कानून लाने की कोशिश सरकार की तरफ से हुई है। और अगर हम त्रिपुरा प्रदेश की बात करें तो इन कानूनों का अच्छे से इम्प्लीमेंट हो, इसलिए सभी लेवल्स पे, चाहे वो मजिस्ट्रेट्स हो, डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऑफिसर्स हो, पुलिस लेवल के ऑफिशियल्स हो, इस तरह के लगभग 4000 से ज़्यादा लोगों को ट्रेनिंग दी जा चुकी है और ये ट्रेनिंग ऑलरेडी कंटिन्यू है। और जो फॉरेंसिक साइंस के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो रही है, तो स्टेट के इनिशिएटिव से नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी ऑलरेडी स्टार्ट हो गई है हमारे प्रदेश में, और इसको और एक्सपेंड करने का हम लोग प्लान कर रहे हैं। और कुछ सेगमेंट से इन क्रिमिनल लॉज को लेके, खासकर जो लीगल हमारे प्रैक्टिशनर्स हैं उनकी तरफ से कुछ एप्रीहेंशन है। तो हम यही उम्मीद करते हैं कि जब जमीनी स्तर पे इसका इम्प्लीमेंटेशन होगा, तो जो इस एक्ट के पीछे जो सोच है सरकार की कि लोगों का में क्राइम का जो निपटारा है, क्राइम का जो डर है वो बना रहे, और जो भी केसेस हों उनका टाइम बाउंड निवारण हो सके, और जो प्रोसिक्यूशन है उसको एडिक्वेट मेजर्स मिल सकें, जो भी नई टेक्नोलॉजी है और जो नए डेवलपमेंट हुए हैं कानून लेवल में, तो केसेस को ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी ख़त्म किया जा सके और इनकी जो पेंडेंसी है इतने सालों से, इसको भी ठीक किया जा सके। और इसके लिए जो टेक्निकल पावर, मैन पावर अथवा जो ज़रूरत है, इसके लिए भी सरकार टाइम बाउंड तरीके से काम कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, एशियन टाइम्स।